تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے عالم کو پیدا کیا اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ تسکین اور سکون کی فضا میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سلام ہو آپ پر۔ ناظرین محترم، یہ کہانی صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ وقت کے دریاؤں سے بہہ کر آئی ہوئی ایک ایسی داستان ہے جو اجداد کے دلوں میں محفوظ تھی۔ آج ہم اسے آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے بغداد کے اس دور کی جب شہر علم و حکمت کا گہوارہ تھا اور دریائے دجلہ کے کنارے تہذیب کا سورج طلوع ہوا کرتا تھا۔ مگر ہر روشن شہر کے پیچھے، ہر چمکتی گلی کے سائے میں ایک اور کہانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ ناانصافی کی کہانی، لالچ کی کہانی اور ایمان کی کہانی۔ سوق الکبیر، شہر کا سب سے بڑا بازار، یہاں صبح سویرے ہی رونق شروع ہو جاتی، اور انہی دکانوں میں ایک چھوٹی سی معمولی سی دکان تھی۔ لکڑی کا ایک پرانا تختہ، اس پر ہاتھ سے لکھے ہوئے الفاظ، عبد المنان قصاب، حلال رزق۔ یہ الفاظ صرف اعلان نہیں تھے، یہ ایک اقرار تھے، ایک عہد تھا۔ عبد المنان بن یحییٰ، 40 برس کے قریب عمر، داڑھی میں چاندی کے چند تار، چہرے پر ایک نور، آنکھوں میں ایک گہرا پرسکون اعتماد۔ وہ صبح کا پہلا کام وضو کرتا، 2 رکعت نفل ادا کرتا، پھر دکان کھولتے وقت ہاتھ اٹھاتا اور دل سے دعا نکل آتی، یا اللہ، تو میرا رزق رکھنے والا ہے، میرے ہاتھ سے کوئی ناپاک نہ کھائے، جو گوشت میں کاٹوں وہ تیری رضا کے لیے ہو، میرے ترازو میں انصاف قائم رکھ، اور میرے دل میں ہمیشہ تیرا خوف، آمین۔ پھر وہ سال آیا جب آسمان نے رحمت روک لی، بارشیں نہ ہوئیں، زمین ویران ہو گئی، قحط نے ڈیرے ڈال دیے، درخت سوکھ گئے، نہریں خشک ہو گئیں، اور بازار میں گوشت کی قلت ہو گئی، قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ ایسے میں ہر انسان اپنی بقا کی فکر میں پڑ گیا۔ قصابوں نے دھیرے دھیرے اپنے اصولوں کو ترازو کے پلڑے میں رکھنا شروع کر دیا۔ ایک نے بیمار جانور بیچنا شروع کیا، دوسرے نے ہڈیوں میں اضافہ کر دیا، تیسرے نے گوشت میں پانی ملانا شروع کر دیا۔ ہر کوئی زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی دوڑ میں شامل تھا، مگر عبد المنان وہ اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ اس کا ترازو آج بھی وہی تھا، اس کا گوشت آج بھی وہی صاف ستھرا۔ لوگ حیران ہوتے، پوچھتے، عبد المنان، تمہیں نقصان ہو رہا ہوگا؟ وہ مسکراتا، جواب دیتا، دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے، آخرت کا نہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ ناظرین محترم، ایک دن اس کا پڑوسی قصاب سالم بن حریث اس کے پاس آیا۔ سالم کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو عبد المنان کی آنکھوں میں تھی۔ اس کی نظر میں صرف سکے تھے، صرف منافع۔ عبد المنان بھائی، ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، زمانہ بدل گیا ہے، تمہارے یہ اصول اب پرانے ہو چکے، ترازو ذرا ہلکا کر دو، ہڈی تھوڑی زیادہ رکھو،
कोई पूछने वाला नहीं, नफा दुगना हो जाएगा। तुम्हारे घर में भी तो बच्चे हैं, उनकी भूख का भी तो ख्याल करो। अब्दुल मन्नान ने धीमे पुरअज़्म लहजे में जवाब दिया, सालिम, मेरे तराजू का गवाह अल्लाह है। मैं जानता हूं कि मेरी रोजी कहां से आती है। मैं रिज़्क़े हलाल ही रखूंगा, चाहे इसमें से मेरा हिस्सा कितना ही कम क्यों ना हो। मेरा रब मुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। सालिम चुपचाप लौट गया, मगर उसके दिल में एक कांटा चुभ गया, हसद का कांटा। इसी दौरान बाजार में नया मुहस्सिल आया, ज़ियाउद्दीन बिन फ़ाइज़। चमकती हुई छड़ी, ऊंची आवाज़, मगर अंदर से खोखला, लालच से भरा हुआ। जिस दिन वो पहली बार अब्दुल मन्नान की दुकान पर पहुंचा, उसने हर चीज़ को बगौर देखा। गोश्त साफ, तराजू दुरुस्त, रिकॉर्ड मुकम्मल। मगर जाते जाते उसने रुककर धीमी आवाज में कहा, कसाब साहब, बगदाद बड़ा शहर है, यहाँ सिर्फ नेक नामी से काम नहीं चलता। कुछ चांदी, हमारे हिस्से की चांदी भी तो आनी चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? अब्दुल मन्नान ने बगैर झिझक के जवाब दिया, मुहस्सिल साहब, हराम की कमाई मेरे रिज़्क़ को बेबरकत कर देगी। मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं नाजायज़ तरीके से कुछ नहीं दे सकता। ज़ियाउद्दीन का चेहरा किसी भट्टी की तरह तप गया। वो बगैर कुछ कहे मुड़ा और चला गया। अब अब्दुल मन्नान के दो दुश्मन तैयार थे, एक हसद से जलने वाला पड़ोसी, दूसरा बदला लेने वाला ताकतवर मुहस्सिल। रात का वक्त था, बाजार सुनसान। सालिम ने अपने दो वफादार नौकरों को बुलाया। उनके सामने एक मुर्दा सड़ती हुई बकरी पड़ी थी। इसे ले जाओ, अब्दुल मन्नान की दुकान के पीछे फेंकाओ। सुबह सबसे पहले तुम ही शोर मचाना, कहना कि तुमने रात को अब्दुल मन्नान को ये मुर्दार लाते देखा था। इसकी बेईमानी का ये सबूत है। नौकरों ने हिचकिचाते हुए कहा, मालिक, अब्दुल मन्नान तो नेक आदमी है। हम। सालिम ने गुस्से से कहा, तुम्हारा काम हुक्म मानना है, सवाल करना नहीं। मैं तुम्हें 2 गुनी उजरत दूंगा, बस मेरी बात मानो। अंधेरी रात में वो 2 नौकर खामोशी से मुर्दा बकरी ले गए, अब्दुल मन्नान की दुकान के पीछे फेंक आए। सुबह का सूरज निकलते ही सालिम के नौकरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे देखो, मुर्दा बकरी, अब्दुल मन्नान मुर्दार बेच रहा है, ये देखो सबूत। सारे बाजार में हलचल मच गई, लोग जमा हो गए। ज़ियाउद्दीन फौरन मौके पर पहुंचा। उसने बगैर किसी तफ्तीश, बगैर किसी सबूत के फैसला सुना दिया। अब्दुल मन्नान, ये खुली बेईमानी है। तुमने मुर्दार गोश्त बेचकर लोगों की सेहत से खेलने की कोशिश की। आज से तुम्हारी दुकान मुस्तकिल तौर पर बंद। ये मुर्दा बकरी तुम्हारी बददियानती का मुंह बोलता सबूत है। उसने सरकारी मुहर निकाली, दुकान के दरवाजों पर लगा दी। खट से आवाज हुई, दुकान बंद हो गई। बाजार के लोग खामोश खड़े थे। हर कोई जानता था कि अब्दुल मन्नान बेकसूर था, मगर कौन था जो मुहस्सिल के सामने बोलता? अब्दुल मन्नान ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं, मगर होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट। या रब, तू सब देख रहा है। उस रात अब्दुल मन्नान जब घर वापस आया तो उसके कदम खमीदा थे, मगर रूह मजबूत थी। बीवी ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला। उनकी आंखों में सवाल था। अब्दुल मन्नान ने सब कुछ बताया।
ज़ैनब की आंखें भर आईं, मगर वो रोई नहीं। उन्होंने अपने शौहर का हाथ थामा, नरमी से बोली, अब्दुल मन्नान, तुमने हलाल खाया है, हलाल कमाया है, हमने कभी किसी का हक नहीं खाया। ये आजमाइश है और हर आजमाइश गुजर जाती है। अल्लाह हमें कभी ज़ाया नहीं करेगा, वो देख रहा है। दिन गुजरने लगे, घर का ज़ख़ीरा ख़त्म होने लगा। बेटा साहिब और छोटी बेटी मैसरी भूख से बेताब होने लगे। एक रात घर में सिर्फ एक सूखी हुई रोटी बची थी। ज़ैनब ने खामोशी से रोटी के 2 टुकड़े किए, बच्चों को बड़े टुकड़े दिए, अपने और अब्दुल मन्नान के लिए छोटे टुकड़े रखे। सबने बिस्मिल्लाह कही। खाना शुरू करना ही था कि दरवाजे पर एक आहट हुई। एक दुबली पतली बिल्ली भूख से कांपती हुई, उसकी आंखों में मदद की गड़गड़ाहट थी। अब्दुल मन्नान ने एक लम्हा भी न सोचा, अपना रोटी का छोटा सा टुकड़ा उठाया, बिल्ली के सामने रख दिया। बिल्ली ने शुक्रगुजार नजरों से देखा और रोटी चाटने लगी। अब्दुल मन्नान ने आसमान की तरफ उठती हुई नजरों से देखा। उसके लबों पर दुआ थी, या रब, तू जानता है मैं किसी का हक मार कर नहीं खा सकता। अगर तेरी मर्जी हो तो इस सूखी रोटी में भी बरकत रख दे, हम तेरे भरोसे हैं। इसी रात अब्दुल मन्नान ने दिल का बोझ हल्का करने मस्जिद का रुख किया। मस्जिद का सहन खामोश था। एक कोने में एक बुजुर्ग शेख अब्दुल वहाब अल मिस्री तस्बीह के दाने पलट रहे थे। उनकी दाढ़ी सफ़ेद थी, चेहरे पर नूर। उन्होंने दूर से ही अब्दुल मन्नान को देख लिया, पुकारा, आओ बेटा, करीब आओ। तुम्हारे चेहरे पर गम के बादल हैं, मगर तुम्हारी पेशानी पर ईमान की रोशनी भी है। क्या मामला है? तुम्हारा दिल क्यों बोझल है? अब्दुल मन्नान करीब गया, बुजुर्ग के सामने बैठा और अपनी सारी कहानी सुनाई। जुल्म की कहानी, सब्र की कहानी। आंखें भर आईं, लेकिन वो रोए नहीं। शेख ने शफकत भरी नजरों से उसे देखा, नरमी से बोले, सुनो बेटा, जब जमीन के सारे दरवाजे तुम पर बंद हो जाएं, तब समझ लेना कि आसमान का दरवाजा खुलने वाला है। झूठ की रस्सी लंबी होती जरूर है, मगर याद रखो, जब वो खींचती है तो आखिरकार जालिम के अपने गले में आकर ही रुकती है। सब्र करो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आजमाइश तुम्हारी बुलंदी का जीना बनेगी। अब्दुल मन्नान का दिल हल्का हो गया। वो घर वापस आया। अगले दिन सुबह हुई तो पूरे शहर में एक हलचल मची हुई थी। शहर के रईस रबी बिन खल्दून के बेटे की शादी थी। बड़ी दावत, सैकड़ों मेहमान। लेकिन खाना खाते ही सब मेहमान बीमार पड़ गए। कै, दस्त, बुखार। हंगामा बरपा हो गया। तहकीक हुई, मालूम हुआ कि गोश्त कस्साब सालिम बिन खरीफ ने सप्लाई किया था और वो गोश्त बीमार नीम मुर्दा जानवरों का था। मामला अदालत में पहुंचा। काजी बगदाद अबू हसन अब्दुल मलिक एक मुनसिफ मिजाज और दूर अंदेश शख्स थे। उन्होंने मुकद्दमा सुनना शुरू किया। सालिम अदालत में खड़ा था, घबराहट में। उसने बहाने बनाने शुरू किए। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ, मेरे जानवर सही सलामत थे, ये कोई और साजिश है। काजी ने तहकीक का हुक्म दिया। सालिम का एक नौकर बिलाल, जिसे रात भर शदीद बुखार रहा था,
अदालत में लाया गया। वो कमजोर था, डरा हुआ था। काजी ने नरमी से पूछा, बिलाल, सच बताओ, क्या सालिम बीमार जानवर बेचता था? बिलाल खामोश रहा। उसकी आंखों में डर था। काजी ने नरमी से कहा, बेटा, सच्चाई कभी किसी का नुकसान नहीं करती। सच बोलने वाले को अल्लाह भी इज्जत देता है। ये अल्फाज सुनते ही बिलाल के रोने पर काबू ना रहा। वो फूट फूट कर रोने लगा। हुजूर, मैं अब झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, सालिम बीमार जानवर बेचता था, और वो मुर्दा बकरी भी, वो भी हमने ही अब्दुल मन्नान की दुकान के पीछे फेंकी थी, सालिम के हुक्म से। उसने हमें पैसे दिए थे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अदालत में एक गहरा सुनाटा छा गया। हर शख्स हैरान था। अब ज़ियाउद्दीन से पूछा गया। उसका सर शर्म से झुक गया। उसने एतराफ़ कर लिया कि उसने सालिम से बड़ी रकम रिश्वत में ली थी और जानबूझकर बेकसूर अब्दुल मन्नान को सज़ा दी थी। सच सामने आ चुका था। काजी ने अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज़ में ताकत थी, इंसाफ था। सालिम बिन खरीफ, तुमने लोगों की सेहत से खेला, एक बेगुनाह आदमी को बदनाम करने की साजिश की। तुम्हारी सारी जायदाद जब्त की जाती है, तुम्हें कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ज़ियाउद्दीन, तुमने एक सरकारी ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, रिश्वत ली, इंसाफ को दागदार किया। तुम माज़ूल किए जाते हो और तुम्हें भी कैद की सज़ा है। फिर काजी ने एक अहम ऐलान किया। अब अब्दुल मन्नान बिन यहया को फ़ौरन अदालत में लाया जाए ताकि उसकी इज्जत उसे वापस मिल सके। जब अब्दुल मन्नान अदालत में दाखिल हुआ तो हर शख्स ने एहतराम से अपनी नज़रें झुका लीं। काजी खुद खड़े हुए। अब्दुल मन्नान बिन यहया, तुम्हारा नाम पाक था, पाक है और तारीख में हमेशा पाक ही रहेगा। तुम पर सख्त जुल्म हुआ, तुम्हारी इज्जत को पामाल किया गया, मगर तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आज से तुम्हारी दुकान बहाल की जाती है। इस पर लगी हुई तमाम पाबंदियां हटा दी जाती हैं। मज़ीद बरां सूक़ुल कबीर बाज़ार की मुकम्मल निगरानी और नाज़िम की ज़िम्मेदारी अब तुम्हें सौंपी जाती है। तुम ये ज़िम्मेदारी संभालोगे कि इस बाज़ार में हलाल व हराम का फ़र्क हमेशा कायम रहे, कोई किसी का हक़ न खा सके। अब्दुल मन्नान के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। वो सजदे में गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह निकलीं। उसकी आवाज़ गुलोगीर हो गई। या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। तूने मेरी रुसवाई को इज्जत से बदल दिया। तूने मेरी आजमाइश को मेरी कामयाबी बना दिया। मैं तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद सालिम को शदीद बीमारी की वजह से आर्जी रिहाई मिली। उसका घर खाली था, जायदाद जब्त हो चुकी थी। उसकी बीवी और छोटे बच्चे भूखे थे। वो सर झुकाए, शर्म से डूबे हुए अब्दुल मन्नान की दुकान के सामने खड़े थे। सालिम खुद अंदर आया। उसकी आंखें ज़मीन में गड़ी हुई थीं। अब्दुल मन्नान, मैं वो हूँ जिसने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। मैं कोई हक नहीं रखता। मेरे बच्चे वो भूखे हैं। अगर तुम उन्हें धत्कार दो तो ये मेरी सज़ा का हिस्सा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब्दुल मन्नान ने सालिम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गम था, अफसोस था, मगर कहीं कोई गुस्सा नहीं था, कोई इंतकाम नहीं था। वो खामोशी से दुकान के अंदर गया।
ایک تازہ صاف گوشت کا بڑا ٹکڑا کاٹا، اسے احتیاط سے لپیٹا، پھر واپس آیا اور وہ گوشت سالم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سالم، تم نے میرا رزق چھینا تھا، مگر میں ان معصوم بچوں کا رزق نہیں چھین سکتا۔ یہ لو، یہ اللہ کا دیا ہوا حلال رزق ہے تمہارے بچوں کے لیے۔ اور سنو، جب تم سچے دل سے توبہ کر لو، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ حلال کی راہ ہی سیدھی راہ ہے، تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں کام دوں گا، مگر ایک شرط کے ساتھ، حلال کی شرط کے ساتھ۔ سالم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑ پڑا، وہ بول نہیں سکا، صرف ہونٹ ہلائے۔ آج میں سمجھا، حلال صرف گوشت میں نہیں ہوتا، حلال انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حلال کی کمائی میں برکت ہے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی دیر لگ جائے۔ سچائی کبھی نہیں دبتی، چاہے اس پر کتنا ہی پردہ ڈالا جائے۔ آج کے اس دور میں جب حرام کی راہیں آسان نظر آتی ہیں، یاد رکھیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، جو تیرا ہے وہ تجھ تک ضرور پہنچے گا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ضرور شیئر کریں، تاکہ ہر کوئی یہ سبق سیکھے۔ حلال کماؤ، صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی اور صبر کی توفیق دے، آمین۔